نماز جنازہ ایک آخری ہمدردی ہے انسان کے ساتھ۔ مثلا نماز جنازے کی نیت کی جاتی ہے، نماز جنازے کی نیت 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ، منہ کعبہ شریف کے پیچھے امام کے اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور دعا واسطے حاضر میت کے۔ ایسے ہے، شاید کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گئے، دعا واسطے حاضر میت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا آپ سے یہی سوال ہے، تھوڑی توجہ چاہوں گا بھائیوں کی۔ آپ سب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو میں نے نماز جنازے میں نیت کی ہے کہ دعا واسطے حاضر میت، یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ یہی پڑھتے ہیں نا، دعا واسطے حاضر میت کے، اور آگے سے جو دعا پڑھی وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ میں صرف اس کا ترجمہ کروں گا، ترجمہ کرنے کے بعد آپ ہی بتانا کہ اس میت کے لیے جو میں نے نیت کی ہے اس کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں ہے۔ پورے نماز جنازے کے اندر ایک لفظ بھی ہم اس بھائی کے لیے بخشش کا نہیں کہتے۔ ترجمہ سنو، اپنے گھروں میں، تمہاری گھروں میں کتابیں ہوں گی نماز جنازے کی، اس میں سے اللہم اغفر لحینا آپ کتاب نکال لینا، اس کا ترجمہ پڑھنا۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، ومیتنا جو ہمارے مر چکے ہیں ان کو معاف کر، شاہدینا جو کسی وجہ سے مجبوری سے اس جنازے میں حاضر، شاہدینا جو جنازے میں حاضر ہیں ان کو معاف کر، یعنی جنازہ پڑھنے والوں کو معاف کر، غائبینا جو کسی مجبوری سے جنازے میں نہیں آ سکے یا اللہ ان کو معاف کر، ذاکرینا ہمارے مردوں کو معاف کر، انسانا ہماری عورتوں کو معاف کر، صغیرینا ہمارے بچوں کو معاف کر، کبیرینا ہمارے بوڑھوں کو معاف کر۔ تو میت جس کے لیے سارے کام چھوڑ کر آئے ہو اس کے لیے کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ، ایک لفظ بتاؤ۔ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا بعض اوقات جنازے میں ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے، تو اس پوری ہزاروں کی تعداد میں امام سمیت ایک بندہ بھی اس میت کے لیے بخشش کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ اس سے بڑا دھوکہ اس دنیا میں ہے نہیں۔ مولوی صاحب وہ بیچارہ مر گیا تھا، تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، تو شیعہ ہے، تو وہابی ہے، تو قادری ہے، چشتی ہے، اور تو جو کچھ مرضی تھا، کم از کم اب اس کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ کرتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا اور میں پیچھے کھڑا تھا۔ جب میرے نبی جنازہ پڑھا رہے تھے تو میت کے لیے بخشش کے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس میت کو، وارحمہ، اللہ اس میت پر رحم کر، وعافہ واعف عنہ، یا اللہ اس سے تو درگزر کر دے، واکرم نزلہ، اے اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا، ووسع مدخلہ، اے اللہ یہ اس دنیا میں زندگی گزار کے گیا ہے، گھر چھوٹا تھا یا بڑا تھا، جیسا بھی تھا، لیکن اب تو اس کی قبر کو باغ کا بغیچہ بنوا دے۔ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ اس کے گناہ کو ایسے دھو دے جیسے ایک سفید کپڑا میل کچیل سے دھو دیا جاتا ہے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اے اللہ دنیا میں اس کا گھر تھا، اچھا تھا، ماڑا تھا، کیسا جیسا بھی تھا، اب ختم ہو چکا ہے، اب تیرے پاس آ گیا ہے، اب تو دنیا کے گھر کے بدلے میں آخرت میں سے اچھا گھر عطا فرما۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ آلِهِ، دنیا میں اس کا چاچا تھا، ماما تھا، بیوی تھی، بچے تھے، ایک فیملی تھی، اب وہ چھوٹ گئی ہے، اب تیرے پاس آ گیا ہے، اب اس کو بہترین فیملی عطا فرما۔
वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही, ये बीवी मर्द है तो बीवी छोड़कर आ रहा है, औरत है तो खामन छोड़कर आ रही है। या अल्लाह दुनिया के खामन से, दुनिया के बीवी से आखिरत में इसको बेहतर बीवी और खामन अता फरमा। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, आय अल्लाह हम लाखों का मजमा, हम हजारों की तादाद में जनाजे में शरीक हैं, हम सब मिलकर एक आवाज में ये कहते हैं, अल्लाह अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना, या अल्लाह हमारी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा, इसको जन्नत में दाखिल फरमा। वअइज़हु मिन अज़ाबिल कब्रि व मिन अज़ाबिन नार, अल्लाह इसको कब्र के अज़ाब से भी बचा और इसको जहन्नम के अज़ाब से भी बचा। अल्लाहुम्मा इन्न फुलान अब्न फुलानिन, ये फलां का बेटा फलां है, फी जिम्मती का व हब्ल जिवारी का, अब ये तेरे सुपुर्द है, अब ये तेरी रहमत में है। आय अल्लाह अल्लाहुम्मा इन काना मोहसिनन फज़िद फी एहसानिही, अगर ये नेक है इसकी नेकियों में इजाफा कर दे। व इन काना मुसीअन फतजावज़न सय्यिआतिही, अगर ये बुरा है, गुनाहगार है, हम ये लाखों का मजमा, हजारों का मजमा मिलकर सिफारिश करते हैं इसके हक में, इसके गुनाहों से दरगुजर कर, इसके गुनाह माफ करके इसको जन्नत अता कर। जब 1000 बंदा मिलकर किसी भाई के जनाजे में ये दुआ पढ़ता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर किसी मैयत के पीछे जनाजा पढ़ने वाले 40 आदमी, 40 मुवाहिद आदमी उस भाई के लिए बख्शिश की दुआ कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत को माफ कर देता है। 40 दूर की बात है, यहाँ तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम ने भी मैयत की बख्शिश के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप नहीं मानोगे, आप नहीं मानोगे, आपके साथ यही धोखा होगा। आप रस्मों में उलझे हुए हो, आप रिश्तेदारियों में फंसे हुए हो, आप दुनिया में ऐसे फंस गए हो, आपको दुनिया के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह के रसूल का अमल क्या था, शरीयत क्या थी, दीन क्या था, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें फिक्र ही नहीं है। तुम कहने के आशिक हो, तुम अपने नाम आशिक रखते हो, अल्लाह के नाम पर झूमते हो, नाचते हो, खाते हो, पीते हो, गाते हो, गली गूंचों में शोर डालते हो, लेकिन जब अल्लाह के नबी की बात आती है, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आता है, फिर सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। हम दोगले मुसलमान हैं, दोगले। हमने आपने अपने टोलियां बनाई हुई हैं, हमने आपने अपनी जमातें बनाई हुई हैं। बस कोई बंदा अपनी जमात से दूसरी जमात में नहीं जाएगा। एक दूसरे को तकीद की जाती है, इसको सलाम ना करना ये फलां है, इसको सलाम ना करना ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। आज तक जब से मैं पैदा हुआ, आज 50 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, मैंने यही तरबियत हासिल की है और इसके अलावा मुझे कभी कुछ भी समझ नहीं है। और रही बात जनाजे की, अपने जनाजे उनसे पढ़वाओ, अपने जनाजे उनसे पढ़वाओ जो जनाजे के अंदर बख्शिश की दुआ करें। जो बंदे जनाजे के अंदर बख्शिश की दुआ ही नहीं करते, तो फिर मेरे भाइयों आपसे मशवरा है, तो फिर तुम मैयत के लिए वास्ते दुआ हाजिर मैयत ये नियत ना किया करो। जब तुम नमाज जनाजे में मैयत के लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं मांगते हो, जब जनाजा खत्म हो जाता है, जनाजे के बाद खड़े हो जाते हो, फिर तुम एक बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार दुआएं मंगाते हो, फिर उन दुआओं में तुम फिर वही दुआएं पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु, जो दुआएं मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे के अंदर मांगी थी, जनाजे के बीच में मांगी थी, तीसरी तकबीर के बाद मांगी थी, लेकिन तुम वहां नहीं मांगते हो, सलाम फेर के बाद में मांगते हो। किसने इख्तियार दिया है, किसने तुम्हें ये तालीम दी है, तुम्हें किसने समझाया है? तुम्हारा नबी जनाजे में मांगे, तुम जनाजे के बाद मांगो, ये इख्तियार कहाँ से आया, ये तालीम कहाँ से लेकर आते हो? बात वही ठीक है, बात वही दीन है जो नबी ने की है। अगर मेरे महबूब जनाजे में दुआ मांगेंगे तो मैं जनाजे में मांगूंगा तो जनाजा है। अगर मैं जनाजे के बाद अपनी तरफ से 3 बार क्या 100
3 बार मैं मांग लूं, वो खिलाफ शरीयत है, वो दीन के खिलाफ है। आपने जनाजे के दरमियान में दुआ मांगी और फिर जनाजा पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए, उस मैयत को सहाबा किराम के साथ मिलकर कब्र में दफनाया। दफनाने के बाद जब कब्र बन गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब फरमाया, ऐ सहाबा किराम, अब तुम्हारे भाई का अब ये जो आखिरी घड़ी है, इंतहाई अहम घड़ी है। अब मुनकर नकीर आ चुके हैं, वो सवाल कर रहे हैं तुम्हारे भाई से। अब मुखलिस होकर अपने इस भाई के लिए कब्र पर बख्शिश की दुआ करो। सारे के सारे इसी जनाजे से 45 सेकंड का जनाजा पढ़ के 45 सेकंड का जनाजा पढ़ के सारे के सारे भाग जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप किसी के साथ ऐसा करोगे, यकीनन कल आपकी बारी है, आपके साथ भी ऐसा होगा। खुद भी जनाजे की दुआएं याद करो और जनाजा उससे पढ़वाओ जिसे जनाजे की दुआ आती है। पहले सुन लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई तौहीन वाली बात नहीं है, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। मौलवी साहब से पूछो, आपको नमाज जनाजे की दुआ आती है? जो दुआ वास्ते हाजिर मैयत के है वो है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक्किही मिनल ख़ताया कमा नक्कैता सौबल अब्यद मिनद दनस वअब्दिलहू दारन खैरन मिन दारिही वअहलन खैरन मिन अहलिही वज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह अल्लाहुम्मा आइज़हू मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार। जब भी तुझे बेटा याद आ जाए, जब भी तुझे बाप याद आ जाए, जब भी तुझे माँ याद आ जाए, इस दुआ को याद कर ले। उसी वक्त अपनी माँ के लिए बख्शिश की दुआ करना शुरू कर दिया कर। जहां तुझे टाइम मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए, 10 मिनट मिल जाए, अल्लाह अकबर, अपनी माँ के लिए इसी दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया कर। आपका हर लम्हा, आपका हर वक्त कोई भी ज़ाया नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा, आप उठते बैठते अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे होंगे। मेरी आप सब भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से यही गुजारिश है, यही इल्तमास है। मेरी बातें तो कड़वी थी लेकिन वो हकीकत पर मबनी थी। आपको जरूर गुस्सा आया होगा, लेकिन जितना मर्जी गुस्सा आया है उसको थूक देना, लेकिन आखिर में ये मेरी बात अपने पल्ले बांध लेना। आज जाकर वापस जाकर नमाज जनाजे की दुआ याद करना और 45 सेकंड में अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वाली दुआ नहीं पढ़ी जा सकती। ख्याल करना, अपने माँ बाप का जनाजा, अपना जनाजा उन्हीं से पढ़ाना, उन्हीं से वसीयत करके जाना जिनको नमाज जनाजे की दुआ आती हो। अगर तुम्हारे मर जाने के बाद, मेरे नबी ने शाह फरमाया है, 40 बंदे ने, सिर्फ 40 बंदे ने, आज तो माशाल्लाह हजारों की तादाद में जनाजे में तो लोग शरीक होते हैं। अगर 40 बंदों ने बख्शिश की दुआ कर दी तो उस मैयत की बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि जो सुनाया उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।